Welcome back to my channel. Here's the part 3 of organizing. Today we discuss rest of the topic of organizing. So we have already discussed about organizing, its features, its importance, its types, divisional structure, functional structure. Now let's come to the type of organization. So type of organization divided into two broad categories, formal and informal. ये दोनों ही बहुत important है organization के लिए. So firstly come to the formal organization. Formal organization refers to the organization structure which is designed to the top management to accomplish a particular task. So basically formal organization वो organization है जहाँ rules and regulation strictly follow किए जाते हैं. Next is informal organization. Informal organization refers to network of social relations which emerges on its own due to formal roles and relationships among people. सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है जहाँ वर्कर्स अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, बेसिकली जहाँ रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते. इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टैंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पढ़कर ही समझ में आ जाते हैं. जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, इनफॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं. तो इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी इसी पॉइंट पर डिपेंड करते हैं. Let's come to the next topic, delegation of authority. Delegation of authority refers to a person of sharing of task or responsibility and authority between a manager and his subordinates. So basically अपना काम दूसरों से कराना, that is delegation of authority. So it is that not that much कि आप ये सोचें कि अपना काम दूसरों से कराना बस ही delegation of authority होता है जब मैनेजर का वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाता. सो जब वो अपना काम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करता है, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सो आपने अपना वर्क डेलीगेट कर दिया, सबॉर्डिनेट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. सो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए उसको प्रॉपर अथॉरिटी भी दी जाए फॉर द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन हैज़ 3 important elements: authority, responsibility and accountability. So authority is the power to achieve the organizational objective. Responsibility is the duty to accomplish the task. Accountability being answerability for the final outcome. Now let's come to the next topic, importance of delegation of authority. Effective management, employee development, motivation of employees, facilitation of growth, basis of management hierarchy, better coordination. The first point of importance of delegation of authority is effective management. So delegation managers को ये relief provide करता है कि वो अपना workload अपने subordinates के साथ share कर सकते हैं, जिससे वो another opportunities और challenges पे concentrate कर सके. Next point is employee development. So delegation of authority employees के personal skill और उनके talent को develop करता है, increase करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. सो वी ऑलरेडी स्टडी डेलीगेशन मीन्स कि अपना काम दूसरों से कराना. हम किसी से भी अपना काम नहीं करा सकते, हम उनसे अपना काम करेंगे जिन पे हमें प्रॉपर ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि ये हमारा काम प्रॉपरली कर सकते हैं. सो दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. सो डेलीगेशन एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ हम अपने वर्कर्स को डेवलप कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, दैट रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. डेलीगेशन इस्टेब्लिश सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. सो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को पता होता है कि उन्हें किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है. Last point is better coordination. So the 3 elements of delegation of authority is authority, responsibility and accountability that properly define powers, duties and answerability. So जो भी confusion होती है ड्यूटीज़ में या परफॉर्मेंस में, जो भी ओवरलैपिंग होती है, वो इसको अवॉइड कर देता है. दैट क्रिएट बेटर कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. So firstly understand the meaning of centralization. Centralization of authority refers to concentration of the decision making power at the top level of management. So that means जितनी भी decision making power है वो सारी top level management के पास होती हैं. So सारे decisions and सारे plan top level ही execute करता है, middle and lower level सिर्फ उसको follow करते हैं. So now come to the decentralization. Decentralization refers to evenly and systematic distribution of managerial authority from top level of management to middle and lower levels.
सो डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ पावर्स मिडिल एंड लोअर लेवल को प्रोवाइड की जाती हैं जिससे वो भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकें, अपना रोल प्ले कर सकें. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज एज वेल एज डिसेंट्रलाइज. ये नहीं है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. So next topic is importance of decentralization. Develops initiatives among subordinates, develop managerial talent for the future, quick decision making, relief to top management, facilitates growth, better control. So the first point of importance of decentralization is develop initiative among subordinates. तो जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ पावर देंगे, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व देंगे, उनको ये फ्रीडम देंगे कि वो भी अपना रोल प्ले कर सकें डिसीजन मेकिंग में, जिससे वो मोटिवेट होंगे टू बिकम डायनामिक लीडर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. डिसेंट्रलाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी देता है सबॉर्डिनेट्स को कि वह अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकें, अपने अकॉर्डिंग सारी जजमेंट कर सकें, सारी एक्टिविटीज़ कर सकें टॉप मैनेजमेंट के लिए. सो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा दैट क्रिएट टैलेंट फॉर द फ्यूचर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग. जब हम अपने साथ और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं सो हम किसी भी डिसीजन पे जल्दी पहुंच पाते हैं. सो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड क्विक डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ देता है क्योंकि वो कुछ अपनी पावर्स, कुछ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करते हैं, वो अदर मेजर पॉलिसीज़ पे कंसंट्रेट कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैसिलिटेट्स ग्रोथ. सो डिसेंट्रलाइजेशन में जब टॉप मैनेजमेंट सारे अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है मिडिल एंड लोअर लेवल में, सो वो अपने अपने डिपार्टमेंट पे फोकस कर सकते हैं जिससे सब काम प्रॉपरली होंगे. दैट क्रिएट फैसिलिटेशन इन ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर कंट्रोल्स. डिसेंट्रलाइजेशन में जब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टॉप लेवल ने शेयर कर दी हैं सो सारा वर्कलोड उसके ऊपर नहीं रहेगा, जिससे कंट्रोल अच्छा रहेगा. दैट क्रिएट्स बेटर कंट्रोल.